بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری سیرہ آن لائن کلاس کا آج 9th لیکچر ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے آپ کی جو جرنی تھی، آپ کا جو سفر تھا، کہ کس طریقے سے آپ کی زندگی شروع ہوئی اور کس طریقے سے آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا اور کن کن مشکلات اور مصائب سے آپ دوچار ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کی زندگی کا دیکھ رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے سبق لیں، نصیحت لیں اور آپ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کی ہم پیروی کریں. اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نہ صرف سننے والے بولنے والے بلکہ عمل کرنے والا بنائیں، اور ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور یہ چیز دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. تو الحمدللہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف کا سفر ایک بہت ہی مشکل سفر تھا، بہت ہی تکلیف دہ سفر تھا. اور اس سفر کے دوران آپ نے یعنی اپنی جو جرنی تھی اس کا سخت ترین دن سے آپ گزرے، سخت ترین حالات سے آپ گزرے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اسراء و معراج کروائی. تو اسراء و معراج جو ہے، یہ واقعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا اور حیات طیبہ کا ایک بہترین واقعہ ہے. اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے یعنی لیسنس ملتے ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں. یہ ایک معجزہ تھا اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بہت ساری نشانیاں دکھائیں. اور اس واقعے کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. 15ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جرنی کا، اس سفر کا، اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے. تو آئیے ہم اس واقعے کو آج انشاءاللہ تفصیلی طور پر دیکھیں گے. اس واقعے کو یعنی تفصیلی طور پر سمجھنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس میں جو واقعات اور نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھیں، اس سے ہم نصیحت لیں، اس سے ہم سبق لیں اور ہم وہ اعمال کریں جس کی وجہ سے ہم کو جنت حاصل ہوگی، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جن کی وجہ سے ہم یعنی اللہ کے عذاب اور جہنم میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اس واقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو سن کر ان سے ہم سبق لیں، ان سے نصیحت لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نشانیاں دکھائی گئی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو اور جو منکرین ہیں اور جو کافرین ہیں ان کو ایک ڈر پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے اگر وہ چاہیں تو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ جو اپنی سازشوں میں اور جو غلط کاموں میں وہ لوگ ملوث ہیں ان کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اس طریقے سے کریں گے تو آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. تو آئیے آج کی میں اس کلاس کا آغاز کرتی ہوں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تلاوت سے، پھر ہم اس واقعے کو تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تو آپ دیکھیں سب سے پہلے اس آیت کا جو ٹرانسلیشن ہے اس میں یہ ہے کہ سبحان الذی یعنی پاک ہے وہ، اسرا یعنی لے گیا رات میں، بعبدہ اپنے بندے کو،
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, यानी रात में मस्जिद हराम से, और इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ। बारकना हौलहु, हमने इस बैतुल मक़दस के अतराफ में, अकनाफ में हमने बरकत रखी है। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं अपनी आयात को, मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और वो सुनने वाला और देखने वाला है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इसरा व मिराज का वाक़या हुआ था, इसकी तफसील हमें इस आयत से मिलती है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि पाक है वो, यानी अल्लाह ताला की जो अपनी ज़ात है उसकी इज्जत और अजमत और पाकीज़गी और उसकी कुदरत को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हर चीज़ पर कादिर है, और उसकी जो कुदरत है उस जैसी कुदरत किसी में नहीं है, और वही इबादतों के लायक है, और सिर्फ वही सारी मखलूक की परवरिश करने वाला है। वो अपने बंदे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात के एक हिस्से में, यानी मक्के यानी मस्जिद हराम की मस्जिद से बैतुल मक़दस की मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा तक लेकर गया, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अंबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ रहा है। इसीलिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम वहीं आपके पास जमा किए गए, और आपने वहीं इन्हीं की जगह इन सब की इमामत की, जो दलील है इस बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आज़म हैं, और यानी आप रईस मुक़द्दम हैं, और आप ही हैं सलवातुल्लाहि व रसूलहु अलैहि व अलैहिम अजमईन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने, यानी अतराफ में जो है हमने बरकत रखी है। सुभान अल्लाह। यानी फल फूल खेत और बागात वगैरह हैं। ये इसलिए कि हमारा इरादा अपने यानी खास बंदे को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लिनुरियहु यानी अपनी जबरदस्त निशानियां दिखाने का इरादा था, जो आपने इस रात मुलाहिजा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने बंदों की, मोमिनों और काफिरों की, यकीन वाला और मुनकिरों की सब की बातें, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला है और जानने वाला है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हो रहा था, जिन तकालीफ और मसाइल और मुश्किलात से आप गुजर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त खामोश नहीं था, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी चीजें देख रहा था, और जो कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का आपके ताल्लुक से कह रहे थे, उनको सुन भी रहा था। तो आप देखिए ये वाक़या जो मिराज है, इसरा व मिराज है, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान में खुद फरमाया है। इसरा के माने हैं यानी ज़मीनी सफ़र कहते हैं स्कॉलर्स, और मिराज के सफ़र को आसमानी सफ़र कहा जाता है। तो ये एक मौजज़ा था, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मौजज़ा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबियों को वक्तन और फ़ौक़तन ऐसे मौजज़े दिखाता रहा है, ताकि उनके ईमान में और मोमिनीन के ईमान में इजाफा हो, और फिर जो कुफ़ार मक्का हैं, कुफ़ार जो हैं, उनको इससे डर और खौफ पैदा हो। अल्लाह का ये मकसद है। तो आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी इसरा और मिराज करवाई, और ये जो आपको मौजज़ा दिया गया था, ये जो मिराकल आपको दिया गया था, इससे पहले किसी नबी को नहीं दिया गया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने ये साबित किया, यानी बैतुल मक़दस में जब आपने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई, तो इससे साबित होता है कि आप अफ़ज़लुल अंबिया हैं, और फिर ये बात भी साबित होती है कि अब आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, यानी ख़त्म नबूवत का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मिल हो चुका है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से ये बात को ज़ाहिर किया। तो आज मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र, वाक़ये इसरा और मिराज को तफसीली तौर पर आप लोगों के सामने रखूँगी, और मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि इसरा का वाक़या, इसरा का जिक्र हमें यानी कुरान में मिलता है, लेकिन मिराज का जो वाक़या है, इसकी तफसीलात हमें अहादीस में मिलती हैं। और इस सफ़र के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे वाक़यात और निशानियाँ दिखाई गई। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि हमारा ये इरादा था कि हम आपको निशानियाँ यानी आयात दिखाएं, निशानियाँ दिखाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे वाक़यात को देखा, और फिर उसके साथ साथ जन्नत और दोज़ख आपको दिखाई गई, अंबिया अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करवाई गई, फिर उनकी इमामत करवाई गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह सुब्हानहू तआला से हुई, आपकी बातचीत हुई, और अल्लाह ताला ने इस रात में आपको दो अहम तोहफ़ों से नवाजा।
तो ये वाक़या गैर मामूली वाक़या है, एक नसीहत आमोज़ वाक़या है, एक सबक आमोज़ वाक़या है। इस वाक़ये के ज़रिए से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये बताया भी इसलिए गया कि हम इन वाक़यात से नसीहत लें, सबक लें और अपने आमाल को, अपने किरदार को हम दुरुस्त करें और अपनी जन्नत कमाने की हम फ़िक्र करें। तो सबसे पहले इस वाक़यात के सिलसिले में मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगी कि हमें मुख्तलिफ अहादीस इस वाक़ये के सिलसिले में मिलती हैं। तफासीर की किताबों में भी इस वाक़ये की तफसीलात हमें मिलती हैं। ख़ास तौर पर इब्न कसीर में इस आयत की यानी तफसीर के तौर पर ख़ास तौर पर हमें बहुत ही तफसीली वाक़यात और बहुत सारे तफसीली बातें बयान की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बहुत सारी इस वाक़ये में आप देखें यानी ज़ईफ़ वाक़यात को भी बयान किया गया है, और बहुत सारी इस्राएली रिवायात भी इसमें यानी शामिल हो गई हैं और ज़ईफ़ वाक़यात में इसमें शामिल कर दिए गए हैं। लेकिन ऑथेंटिक अहादीस से भी हमें इसकी तफसीलात मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपने सहाबा के सामने इस वाक़ये को रखा। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जो सही अहादीस और हसन अहादीस के ज़रिए से जो वाक़यात आ रहे हैं उनको आपके सामने रखूँ, और मुख्तलिफ अहादीस इस सिलसिले में आई हैं। इसके जो रावी हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो इन अहादीस की जो अल्फाज हैं उसमें थोड़ा सा यानी अल्फाज मुख्तलिफ भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन असल इसका मकसद ये है कि इस वाक़ये से हम लोग नसीहत लें। अल्फाज थोड़े से डिफरेंस आए हैं, बाद वाक़या पहले बयान किया गया है, बाद सहाबी ने बाद में उस वाक़ये को बयान किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ सहाबा ने इस हदीस को, मिराज वाली हदीस को रिवायत किया है और उनके अल्फाज में उसको बयान किया है। तो इस वजह से हमें जो अहादीस मिलती हैं उन अहादीस में थोड़े से अल्फाज में यानी पहले और बाद में कुछ अल्फाज आया, मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम इसको समझें और इसके ज़रिए से हम यानी अपने आप को दुरुस्त करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं इस वाक़ये के सिलसिले में सही बुखारी की जो हदीस है और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मरवी है, वो हदीस से मैं अपनी बात को आज इस वाक़ये को शुरू करूँगी। और बाज़ वाक़यात इसमें आप देखेंगे कि यानी इसरा का जो सफ़र हुआ था मस्जिद हराम से लेकर बैतुल मक़दस तक, उस सफ़र के दौरान में जन्नत और दोज़ख के वाक़यात बयान किए गए हैं। यानी जन्नती जैसे आमाल करने वाले लोग कौन थे और दोज़खी जैसे आमाल करने वाले लोग कौन थे। तो बाज़ वक़्त हमें ये इसरा में मिलता है, यानी आप पहले बैतुल मक़दस जा रहे थे तो उस रास्ते में ये वाक़यात बाज़ सहाबा ने बयान किया है, बाज़ ने इसको यानी आसमानों के सफ़र, 7 आसमान पर सफ़र के बाद जब आपकी वापसी हो रही थी, इन वाक़यात को बयान किया है। तो मैंने आज के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जो इसरा है यानी ज़मीनी जो सफ़र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम से लेकर बैतुल मक़दस तक, उस सफ़र के दौरान में आपको जन्नत और दोज़ख की यानी दोज़खी लोगों के कौन से आमाल थे और जन्नती लोगों के आमाल क्या थे, उनको मैं आपके सामने रखूँगी। और फिर उसके बाद हम मेराज के वाक़यात को देखेंगे और इंशाअल्लाह इस तरीक़े से हम यानी अपने नसीहत का सामान करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इस वाक़ये के सिलसिले में जो हमें मिलती है वो सही बुखारी की हदीस है, जिसमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मेराज वाली रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी मस्जिद हराम से आपको बुलाया गया, उस रात का वाक़या है कि आपके पास 3 फरिश्ते आए। इससे पहले कि आपकी तरफ वही की जाए, उस वक्त आप यानी बैतुल्लाह यानी मस्जिद हराम में सोए हुए थे। तो इनमें से अगले ने पूछा, यानी एक फरिश्ते ने पूछा कि इनमें से कौन है। तो इससे में पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लोगों के साथ वहां पर सोए हुए थे, इस वजह से उस फरिश्ते ने पूछा कि इनमें से कौन है। दरमियान वाले फरिश्ते ने जवाब दिया कि ये उन सब में बेहतर है। तो सबसे आखिर वाले ने कहा फिर इनको ले चलो। बस इस रात तो इतना ही हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ना देखा। दूसरी रात फिर ये तीनों आए, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सो रहे थे, लेकिन आपका सोना इस तरह था, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम का सोना किस तरीके का होता है कि उनकी आंखें सोई भी होती हैं लेकिन उनके दिल जो है वो जाग रहे होते हैं, और तमाम अंबिया की जो नींद है इसी तरह की होती है। इस रात उन्होंने आपसे कोई बात न की, यानी दूसरी रात फरिश्तों ने आपसे कोई बात न की। आपको उठाकर चाहे जमजम यानी जमजम का जो कुआं है उसके पास आपको लिटा दिया, और आपका जो सीना है गर्दन तक
यानी सीने मुबारक को गर्दन तक खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से चाक किया, यानी इसको खोला और सीने और पेट की तमाम चीजें निकालकर इन्हें अपने हाथ से जमजम के पानी से धोया। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक ओपन हार्ट सर्जरी की तरह था, कि जिस तरह से आजकल के ज़माने में ओपन हार्ट सर्जरी, किसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है तो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, और इसी तरीके से यानी सीने को चाक किया जाता है, सीने को खोला जाता है और दिल निकाला जाता है। तो उस ज़माने में जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कुफ़ार मक्का के सामने रखी तो उनके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। उनको बड़ी हैरत हुई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक शख्स का सीना चाक किया जाए, खोला जाए और फिर उसको निकाला जाए और फिर उसको दोबारा उस जगह रखा जाए। तो उनको ईमान लाने में बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि आज से 1400 साल के बाद यानी ऐसा मुमकिन भी है और बहुत आसान भी है। तो आज आप देखेंगे ओपन हार्ट सर्जरी हर दूसरे तीसरे बंदे की यानी होती रहती है, और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लोग भले चंगे अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया और फिर आपकी यानी उसको निकालकर जमजम के पानी से इसको धोया गया। जब खूब पाक को साफ कर चुके तो आपके पास एक सोने का तश्त लाया गया। सोने का तश्त का मतलब ये है कि एक ट्रे आपके पास सोने की जो थी वो लाई गई, जिसमें एक सोने का एक बहुत बड़ा प्याला जो था, बोल जो था, वो इसमें रखा हुआ था, जो हिकमत, विजडम और ईमान से, फेथ से पुर था। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को और गले की रगों को पुर कर दिया, फिर सीने के आपको यानी सी दिया गया। तो ये शक सदर का वाकया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक सदर का जो वाकया है वो 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे, यानी 5 या 6 साल के थे और आप दाई हलीमा के पास थे, तो उस वक्त यानी बचपन में ये शक सदर का वाकया हुआ था। उसी के बाद दाई हलीमा जो है यानी परेशान हो गई थी। बच्चों ने जब कहा कि कोई एक आए और उन्हें लेकर पहाड़ों की तरफ गए और इस तरह से वाकया हुआ है, तो आप काफ़ी परेशान हुई और आपने आपको लाकर मक्के में आपकी वालदा के पास आपको छोड़ दिया था। तो ये वाकया शक सदर का वाकया, सीने को चाक करना और आपके दिल को पाक को साफ करना, ये 2 मरतबा पेश आया। एक बार बचपन में और दूसरा जो है यानी मेराज की रात में जब आपको यानी अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाना चाहता था, तो उस वक्त ये वाकया पेश आया। तो इस हदीस के सिलसिले में आप देखेंगे ये वाकये के सिलसिले में हमें मुख्तलिफ 2-3 अहादीस मिलती हैं। जैसे मसनद अहमद की भी हमें एक हदीस मिलती है कि उसमें यह है कि आप उस वक्त उम्मे हानी, आपकी जो फुफेरी बहन थी या फूफी थी, उनके घर में आप सो रहे थे। तो उस वक्त यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ फरिश्ते आए और उनको वहां से आपको उठा लिया गया, यानी वहां से आपको ले जाया गया। फिर एक और हदीस हमें मिलती है जिसमें ये बात होती है कि आप हतीम में सो रहे थे। हतीम यानी वो इलाका या वो एरिया जो हम देखते हैं मक्के के बाजू में, जिसकी एक बोलते हैं ना एक बाउंड्री बना दी गई, तो उसको हतीम कहते हैं। तो वो इलाका, इससे पहले वो एरिया जो था मक्के में यानी काबे के अंदर शामिल था, लेकिन काबे की जब दोबारा तामीर हुई तो इस हिस्से को बाहर, थोड़ा सा हिस्सा बाहर हो गया है, तो उस हिस्से को हतीम कहा जाता है। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि आप हतीम में सो रहे थे, उस वक्त आपको यानी फरिश्ते आए और वहां से आपको उठाया गया। तो यानी 2-3 मुख्तलिफ रिवायत हमें इस सिलसिले में मिलती हैं। फिर एक और रिवायत हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सो रहे थे, तो आपकी छत जो है, आपका जो छत है घर का, वो फटा और उसमें से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और फिर आपको वहां से उठाया गया और आपको ले जाया गया। ये 3-4 रिवायत हमें मिलती हैं। तो ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने रखी है कि इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी रात में जब आप इशा की नमाज पढ़ के सो रहे थे और उस वक्त आपके पास यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए या 3 फरिश्ते आए और उन्होंने आपको उठाया, और इस तरीके से शक्क़ सदर का वाक़या आपके साथ पेश आया गया। और फिर उसके बाद रिवायात में आता है कि एक यानी सवारी लाई गई, यानी एक सवारी जो है, इसके सिलसिले में हमें हदीस जो मिलती है वो मसनद अहमद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मेरे पास बुर्राख लाया गया। और बुराख क्या था? एक सवारी थी, एक जानवर है। यानी इसके सिलसिले में खास तौर पर हमें ये बात बयान की जाती है कि ये एक जानवर था जो गधे से यानी डोंकी से ऊंचा और खच्चर से नीचा था।
ये क्रॉस ब्रीडिंग होती है घोड़े और गधे की, इसके जरिए से जो यानी नस्ल होती है उसको खच्चर कहा जाता है। यानी खच्चर से नीचा था जो एक एक कदम इतनी दूर रखता था जितनी दूर इसकी निगाह पहुंचे, यानी इतना। बुर्राक के माने बर्फ से ही, बर्फ के माने बिजली है, और बिजली यानी आप देखिए बिजली जो होती है वो रोशनी जो होती है इतनी फास्ट होती है, इतनी ज्यादा तेज होती है कि एक सेकंड में वो कई हजारों मील तक वो ट्रैवल करती है। तो ये जो बुर्राक था, बाद स्कॉलर्स इसको बुर्राक कहते हैं, बाद स्कॉलर्स इसको बर्राक कहते हैं। तो ये जो इतना फास्ट था ये बिजली से ज्यादा तेज था, यानी इतनी फास्ट ये सवारी थी। और फिर इसके सिलसिले में आया कि ये जानवर की शक्ल का था, और फिर जहां यानी उसके कदम रखते, जहां तक उसकी नजर पहुंचती वो वहां पर कदम रखता था। तो इस पर आपको यानी सवार किया गया, यानी सवार करने की जब कोशिश की गई तो वो बिदकने लगा, यानी एक हदीस में आता है कि वो बिदकने लगा। तो आप देखेंगे उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बुर्राक, वल्लाह तुझ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपसे ज्यादा बुजुर्ग कोई शख्स भी सवार नहीं हुआ है। बस बुर्राक जो है वो पसीनों पसीनों हो गया, और फिर उसने जब आप उस पर बैठे तो बहुत ज्यादा यानी उसके साथ तैयार हो गया। फिर उसके बाद एक हदीस में आता है कि उस बुर्राक की यानी जो सवारी थी, जो जानवर था, उसकी एक ज़ेन भी थी, यानी जिस तरह से होता है घोड़े को पकड़ने के लिए ज़ेन होती है, यानी उसको कंट्रोल किया जाता है, वो भी उसको थी। और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फिर उस पर आपके साथ यानी आपने उसको ज़ेन को थाम लिया था, और फिर वहां से वो क्या है वो सवार हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद फिर वहां से आपकी यानी जो जमीनी सफर था, जो इसरा व मिराज का सफर था, वो शुरू हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने जरीर की रिवायत है कि बुर्राक ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनी और फिर वो आपको सवार करके ले चला, तो आपने रास्ते के एक किनारे पर एक बुढ़िया को देखा। बाज वाकयात आप देखेंगे हसन भी हैं और इब्ने कसीर के वाकयात हैं, तो बाद इसमें एक आध वाकया आपको हो सकता है ज़ईफ लगे, लेकिन इन वाकयात के बयान करने का मकसद हमारा ये है कि हम इससे नसीहत लें और इससे हम सबक लें। इस मकसद के लिए मैं इन वाकयात को आपके सामने रख रही हूँ कि जब ये बुर्राक आपको लेकर चला तो आपने रास्ते के किनारे पर एक बुढ़िया को देखा, पूछा ये कौन है, जवाब मिला कि चलिए चलिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते चलते देखा कि कोई रास्ते से एक सू है और आपको बुला रहा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आवाज दे रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े हैं तो देखा कि अल्लाह की एक मखलूक है और बा आवाज बुलंद कह रही है, अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरु। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया। फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी मर्तबा भी यही हुआ, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचे। तो रिवायत में आता है कि वहां आपके सामने पानी, शराब और दूध पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को ले लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने राज़े फितरत को पा लिया है। अगर आप पानी का बर्तन लेकर पी लेते तो आपकी उम्मत गर्क हो जाती, और अगर आप शराब पी लेते तो आपकी उम्मत बहक जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पहली चीज तो बुर्राक के सिलसिले में आपको बताऊंगी, फिर ये तीन चीजें जो आपके सामने पेश की थी। अक्सर लोग आप देखें अपने घरों में बुर्राक की एक तस्वीर लगाते हैं, और वो तस्वीर में आप देखेंगे औरत का फेस होता है, यानी उसके यानी घोड़े पिछला जो हिस्सा होता है वो घोड़े की तरह होता है, लेकिन जब वो उसका चेहरा जो होता है, फेस जो होता है, वो औरत की शक्ल का बनाते हैं लोग, और इसको अपने घरों में लगाते हैं और ये समझते हैं कि ये बहुत ही यानी इसको घर में अगर हम लगाएंगे तो बरकत होगी या फला फला, उनका जो भी अकीदा हो। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर हमें खास तौर पर बताया गया कि बुर्राक एक जानवर था, एक सवारी, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, और फिर तीसरी चीज ये है कि वो बहुत तेज था, बिजली से ज्यादा उसकी तेज रफ्तारी थी। और फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होने से पहले वो बिदक गया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी जो फजीलत है उसको बताई, तो वो पसीना पसीना हो गया। फिर उसके बाद जब आपकी सवारी आगे बढ़ी तो हमने देखा कि आपको यानी सलाम किया गया, तो आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सलाम का जवाब दीजिए। फिर उसके बाद आपके सामने तीन चीजें पेश की गई, तीन प्याले, यानी आपको यानी प्यास लगी तो आपने कुछ ड्रिंक करने के लिए, यानी बोलते ना प्यास लगती है तो आपने पानी मांगा, तो आपके सामने ये तीनों चीजें पेश की गई।
تو ایک میں کیا تھا؟ شراب. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شراب پیش کی گئی. تو یہاں تک آپ دیکھیں گے شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اور عربوں کا یہ کلچر تھا کہ ان کی جو ڈرنک تھی وہ لوگ جس طرح سے پیا کرتے تھے وہ شراب پیا کرتے تھے. تو آپ کے سامنے کیونکہ یہ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور اس کی حرمت کا جو حکم آیا وہ بعد میں آیا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں شاید اس وجہ سے بھی آپ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. پھر آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور پھر آپ کے سامنے پانی پیش کیا گیا. تو آپ نے دودھ کو سلیکٹ کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے یعنی تعریف کی اور فرمایا کہ آپ یعنی فطرت پر ہیں. آپ کی جو قوم ہوگی، جو نسل ہوگی، یعنی آپ کی جو امت ہوگی وہ فطرت پر ہوگی. اگر آپ پانی لے لیتے تو پھر اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی سیلاب کے ذریعے سے، فلڈ کے ذریعے سے تباہ و برباد کی جائے گی. پھر شراب کے سلسلے میں آپ نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت جو ہے بہک جاتی تھی. آپ نے دودھ کو سلیکٹ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت جو ہے فطرت پر قائم رہے گی. تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا. اور اس کے بعد جو بڑھیا کو آپ نے دیکھا تھا جو آپ کو آواز دے رہی تھی راستے میں، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ راستے کے کنارے جس بڑھیا کو آپ نے دیکھا تھا، آپ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ دنیا کی عمر اب صرف اتنی ہی باقی ہے. یعنی وہ عورت جو بڑھیا کی شکل میں تھی، یعنی آپ کی جو دنیا کی عمر ہے آپ کی امت کی وہ اتنی ہی ہوگی جیسے اس بڑھیا کی عمر ہے. اور جس کی آواز پر آپ توجہ کرنے والے تھے، وہ جو آپ کو آواز دے رہا تھا راستے میں، وہ دشمن خدا ابلیس تھا. اور جس کی سلام کی آوازیں آپ نے سنی وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو اس سے بھی ہمیں بعض یعنی اس حدیث کے سلسلے میں تھوڑا سا یعنی الفاظ کا اختلاف ملتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ براق پر سوار ہو کر یعنی آپ جب وہاں پر پہنچے بیت المقدس میں، تو ایک جگہ آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا راستے میں کہ یہیں اتر کر نماز ادا کیجیے. یعنی ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں پر اتریے اور آپ نماز ادا کیجیے. جب میں نماز پڑھ چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ طیبہ یعنی مدینہ ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے. یعنی آپ جب ہجرت کریں گے تو آپ اس جگہ پر جائیں گے. پھر مجھے ایک اور جگہ نماز مجھ سے پڑھوائی گئی اور فرمایا کہ یہ طور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. پھر ایک اور جگہ آپ سے نماز پڑھوا کر فرمایا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء جمع ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے امام بنایا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کا جب سفر شروع ہوا بیت المقدس کی طرف، تو سب سے پہلے جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا اور آپ کو مختلف آوازیں آ رہی تھی. پھر آپ کو سلام کی بھی آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ سلام کا جواب دیجیے. لیکن آپ کو اس بڑھیا کی طرف توجہ دینے سے اور جو آوازیں آپ کو آ رہی تھیں اس کی طرف توجہ دینے سے آپ کو منع فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ کو بتا دیا بھی گیا کہ یہ کیا چیزیں تھیں اور یہ ان کا مقصد کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک ایک جگہ اتروایا گیا اور آپ سے نماز پڑھوائی گئی. تو سب سے پہلے آپ کو جو یعنی مدینے کی جو جگہ کے سلسلے میں روایت میں آتا ہے کہ بہت ہی ایک سفید قسم کی یعنی جیسا ہوتا ہے نا کریمی شکل کی مٹی آپ نے دیکھا اور بہت ہی خوبصورت جگہ وہ تھی. تو آپ کو جب وہاں نماز پڑھے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ مدینہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یعنی طور سینا اور پھر اس کے بعد بیت اللحم، یہ تینوں مقامات پر آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں فلاں نبی کی جگہ ہے. اس دوران سفر آپ جب گزرتے ہیں تو آپ ایک خبر میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت نہ دو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی خبر میں نماز پڑھ لیتے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو انہیں یہ نبی ان سے بہتر ہے ان سے، تو ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا. جس نبی کا جو مقام ہے اور جو مرتبہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اسی طریقے سے ہم کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ ان کی اپنی خبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا
और फिर दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस सफ़र में मेरी 3 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। एक यानी मैंने उनको देखा है, एक मरतबा तो खबर में जब आप नमाज पढ़ रहे थे, फिर दूसरा आप बैतुल मक़दस में आपकी वहाँ मुलाकात हुई, फिर आसमानों पे आपकी मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। तो यहाँ तक आप देखेंगे जब आपको यानी बैतुल मक़दस में आप मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए तो वहाँ पर आपने देखा कि तमाम अंबिया जमा हुए हैं और फिर आपको यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको ये हुक्म दिया कि आप इनकी नमाज पढ़ाएं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जब आप नमाज पढ़ा चुके तो इस दौरान में फिर आपका जो सफ़र यानी उसके बाद जो शुरू होने वाला था उसी सफ़र के दौरान में और भी बहुत सारे वाक़यात आपको दिखाए गए। यानी ख़ास तौर पर आपको इस सफ़र के दौरान में जन्नत दिखाई गई और आपको दोज़ख दिखाई गई। तो जन्नत और दोज़ख आपको क्यों दिखाई गई, यानी वो कौन लोग थे जो जिन आमाल की वजह से उनको यानी जन्नत में दाखिल किया जाएगा या उनको दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। तो इसके लिए आप देखिए बैतुल मक़दस में आपको दाखिले से पहले रिवायात में आता है कि आपने जो बुर्राक आपकी सवारी थी, जिसकी ज़ेन थी, जो आप उसको थामे हुए थे, एक जगह आता है कि आपने थामा था, एक जगह आता है कि आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो फिर उसको वहाँ पर एक पत्थर है बैतुल मस्जिद अक़सा के पास यरूशलेम में, उस पत्थर की जगह पर आपने उस बुर्राक को बांधा। वहाँ पे एक सुराख है, वहाँ पे हर नबी ने अपने सवारी को उससे बांधा था, तो आपने भी उसको वहाँ पर बांधा, यानी जिब्राइल आपने बांधा या जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको बांधा और फिर उसके बाद वो लोग अंदर दाखिल हुए। तो इस सफ़र के दौरान में यानी आपका जो सफ़र बैतुल मक़दस मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस तक का जो सफ़र था, इस सफ़र के दौरान में जो वाक़यात आपने और भी बहुत सारे देखे हैं, तो वो वाक़यात मैं थोड़ा आपके सामने रखूँगी कि आपने इस सफ़र के दौरान में देखा कि एक कौम है इधर खेती काटती है, यानी खेती यानी एक बहुत बड़ा खेत है, बाग है, खेती काटती है, यानी एक कौम है, चंद लोग हैं जो खेती काटती इधर बढ़ जाती है, इधर काटते नहीं है, इधर बढ़ जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया ये राह खुदा के मुजाहिद हैं, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला के रास्ते में जो लोग जिहाद करते हैं वो लोग हैं और उनकी नेकियां जो है 700 तक बढ़ती है और जो खर्च करेंगे इसका बदला पाते हैं। यानी मुजाहिद हैं जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं और जिहाद करते हैं, उनकी नेकियां जो है वो 700 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बढ़ती हैं। और जो भी इंसान अल्लाह सुब्हान व तआला के रास्ते में अपने माल को इन्फाक फी सबीलिल्लाह करता है, वो इसका बदला इसी तरीके से पाता है। तो इसका मतलब ये था कि वो लोग जैसे ही अपने अमल की वजह से यानी वो खेती काट रहे हैं, फौरन फिर वो बढ़ रही है, फिर वो काट रहे हैं, फिर वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करते हैं वो हमेशा बढ़ता ही रहता है उसका अजर, वो माल कभी उसका कम नहीं होता है। फिर आप देखिए अल्लाह ताला तो क्या है, बेहतरीन राज़िक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजारा एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर जो है पत्थरों से कुचले जा रहे थे, यानी उनके सरों को पत्थरों से मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था। एक बार जैसे उनके सर मारे जाते यानी कुचले जाते, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो ठीक हो जाते और फिर कुचले जाते और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग ठीक हो जाते। तो यानी उनका सर पत्थरों से कुचला जा रहा है, फिर उनका सर ठीक हो रहा है, फिर उनका सर कुचला जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हैरत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ये लोग कौन हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं कि फर्ज नमाजों के वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे। फिर कुछ लोगों को मैंने देखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने जब सवाल किया कि इन लोगों के सर कुचले जाते हैं, यानी पूरे चिपक जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। तो आपको ये बताया गया, यानी ये वो अमाल बताए गए आपको इस सफर के दौरान के ये अमल यानी नेक अमल करने वालों का अजर किस तरीके से होता है और बुरे अमाल करने वालों का अजर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर खास मखसूस अमाल हमें बताए गए हैं, अल्लाह के नबी को खास मखसूस अमल करने वालों का अंजाम बताया गया है। खास तौर पे पहला अमल जो नेक है, अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं या जहाद करते हैं, उनका अजर बताया गया, यानी वो आपको एक निशानी के तौर पर दिखाया गया कि ऐसा अमल करने वालों को ऐसा बदला मिलता है। फिर दूसरा हमें एक वाकया बयान किया गया
एक ऐसा अमल, एक ऐसा बुरा अमल कि वो अमल करने की वजह से जहन्नुम में इसका बदला जो है, इसका रिवॉर्ड जो है, इसका जो पनिशमेंट है, वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाया गया। तो यहाँ पर हमें सीखने वाली बात ये है कि हमें कौन से आमाल इख्तियार दुनिया में करने हैं, इन पनिशमेंट्स को, इन रिवॉर्ड्स को देखकर सीखना है कि कौन से अमल करने की वजह से हमें कामयाबी मिलने वाली है और कौन से अमल की वजह से हमें सजा मिलने वाली है। तो यहाँ पर खास तौर पर उन लोगों की वो सजा बयान की गई है जो नमाजों के वक्त में, खास तौर पर फर्ज नमाज के वक्त में उनको यानी सोते रहते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे फजर की जो नमाज है वो नींद की वजह से, नींद के गलबे की वजह से क्या है, इंसानों पर भारी होती है। और लोग क्या है, अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती। हम 4 वक्त की नमाज तो पढ़ लेते हैं, यानी 3 वक्त की, जैसा ज़ोहर, असर और मगरिब, लेकिन हमसे फजर की नमाज नहीं होती और इशा की नमाज नहीं हो पाती है, क्योंकि थकन की वजह से नींद आ जाती है तो हम सो जाते हैं, सुस्ती और काहली की वजह से। तो नमाज के लिए जो लोग सुस्ती और काहली करते हैं और सो जाते हैं और गफलत में पड़े रहते हैं और उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे ख़ास तौर पर जो सज़ा दी जाएगी, ये नमाजों के वक्त में जो लोग सोते पड़े रहेंगे, गफलत में रहेंगे, उनको जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ा ये है कि उनको जहन्नुम में उनके सरों को पत्थरों से कुचला जाएगा। वो कुचले जाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे, कुचले जाएंगे और ठीक। तो इससे हमारे लिए सीखने वाली क्या बात है कि असल सीखने वाली बात ये है कि हमको इस वाक़ये से ये नसीहत लेनी है और अपने अंदर एक खौफ और डर पैदा करना है कि अगर हम भी ऐसा अमल करेंगे तो ये सज़ा हमको मरने के बाद मिलेगी। तो हमें नमाजों के वक्त में, ख़ास तौर पर फजर की नमाज के वक्त में, जो बोलते हैं ना नींद बहुत मीठी होती है उस वक्त, और उस वक्त की नींद बहुत ही गहरी होती है और उस वक्त की नींद हमें लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और उस वक्त हम कोताही करके सोते पड़े रहेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे लिए बहुत ही भयानक अंजाम बनने वाला है और ये बहुत इस तरह की भयानक सज़ा हमें मिलने वाली है। तो हमें सीखने वाली बात यह है कि फजर की नमाज का और इशा की नमाज का ख़ास तौर पर हम एहतमाम करें और दूसरे औक़ात भी नमाजों को सोकर ज़ाय ना करें। यानी नमाज का वक्त हो रहा है, हम सोते पड़े हुए हैं, पूरा नमाज का वक्त गुजर गया, तब उठ रहे हैं और फिर हम ये बोल रहे हैं कि हम सो गए थे, इस वजह से हम पे यानी पनिशमेंट लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि नमाज के औक़ात के वक्त में सोते रहना एक बहुत बड़ी यानी गलतफहमी है और बहुत बड़ी कोताही है और बहुत बड़ी गफलत है। इससे हमें जागने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपने एक और वाक़या देखा। क्या वाक़या था? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि उनके आगे और पीछे जो है धज्जियां लटक रही हैं। धज्जियां यानी बोलते हैं ना, कपड़ों की चीरियां जैसे होते हैं ना, वैसे लटक रही हैं और ऊंट और जानवरों की तरह कांटोदार जहन्नुमी दरख्त चर चुग रहे हैं और जहन्नुम के पत्थर और अंगारे खा रहे हैं। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात न देने वाले थे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। कि आपने देखा कि चंद लोग क्या हैं, उनकी लिबास जो है, उनके जिस्म पे धज्जियां लटक रही हैं और फिर उसके साथ वो जानवरों की तरह से यानी जहन्नुम के जो दरख्त हैं ज़क़ूम के, वो उसको खा पी रहे हैं, चर चुग रहे हैं और फिर जहन्नुम के पत्थर और अंगारे भी खा रहे हैं। तो आपने पूछा ये कौन लोग हैं? तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माल की ज़कात नहीं निकालते थे। नमाज और ज़कात ये दोनों फ़र्ज रुकन हैं और इन दोनों फ़र्ज में ऑब्लिगेट इन इट इज़ ए ऑब्लिगेशन, ये कंपलसरी है। और ये अगर अमल हम नहीं करेंगे, यानी अल्लाह ने माल दिया है और फिर उसके साथ साथ हम साहिब निसाब भी हैं, साल भर भी गुजर गया है, लेकिन हम कुछ बहाने करते हैं और हीले करते हैं और अपनी मालों की ज़कात नहीं निकालते हैं और ये समझते हैं कि कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यानी आखिरत में ऐसे लोगों का ये अंजाम होगा कि वो जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे और फिर वहाँ के पत्थर और अंगारे खाएंगे और ज़क़ूम के दर्द को ऊँटों की तरह चरते हुए उसको खाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हमें ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी और नमाज के औक़ात का ख्याल रखना है और फिर दूसरी चीज़ हमारे लिए है कि हम ज़कात जो है उसको सही कैलकुलेट करके और सही तरीके से हम इसको ज़कात को वक्त मुकर्ररा पर इसको निकाल दें। ये हमें सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे
ये लोगों ने खुद, यानी इन पर कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है कि इस तरीके की पनिशमेंट से दो चार हैं, बल्कि इन्होंने खुद अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है और इसकी वजह से वो क्या है, इस यानी सजा के मुस्तहिक हुए हैं। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा कि उनके सामने एक हंडिया है, हंडिया यानी एक बोलते ना यूटेंसिल्स है या वेजल है, और उस वेजल में आप देखेंगे यानी बड़ी सी हंडिया में तो साफ सुथरा गोश्त है, और दूसरे में आप देखें एक और हंडिया है जिसमें खबीस यानी सड़ा भुना गंदा गोश्त रखा हुआ है। यानी एक प्लेट में या एक हंडी में आप समझे अच्छा गोश्त रखा हुआ है, और दूसरी हंडिया या प्लेट में आप देखेंगे एक सड़ा हुआ, भुना हुआ, जला हुआ और गंदी बदबू आने वाला गोश्त रखा हुआ है। तो आप देखें वो लोग जो है ये उस अच्छे गोश्त से तो रोक दिए गए हैं और इस बदबू और बदमजा सड़े हुए गोश्त को खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हैरत हुई और आपने सवाल किया ये कैसे लोग हैं कि उनके सामने एक अच्छा गोश्त रखा हुआ है, वो उसको छोड़कर एक गंदे और एक बदबूदार गोश्त की तरफ बढ़े हुए हैं और उसको खा रहे हैं। हैरत अंगेज बात है। तो आपने उन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ये कौन से गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, कौन सा गुनाह उन्होंने किया है जिसकी वजह से उनको ये सजा मिली है कि वो अच्छे गोश्त को छोड़कर बुरा गोश्त खा रहे हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो मर्द हैं जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर हराम औरतों के पास रात गुजारा करते थे। यानी अल्लाह ताला ने उनको बीवियों से नवाजा था, लेकिन उनको छोड़कर वो जो गैर निकाह वाली औरतें हैं, जो खराब औरतें हैं, वैसी औरतों के पास जाते थे और उनकी यानी हलाल रिश्ते को छोड़कर हराम रिश्ते में पड़ गए थे और उनके साथ अपने ताल्लुकात रखते थे और रातों को गुजारा करते थे। और फिर वो औरतें हैं जो अपने हलाल खाविंदों को छोड़कर यानी अपने शोहरों को छोड़कर यानी बद किरदारों के यहाँ रात गुजारा करती थी। फिर आपने देखा कि रास्ते में एक लकड़ी भी है, ये हर कपड़े को फाड़ देती है और हर चीज को वो जख्मी कर देती है। पूछा गया, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, कि एक लकड़ी है और वो हर चीज को फाड़ देती है और हर चीज को जख्मी कर देती है। तो आपने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि आपके उन उम्मतियों की मिसाल है जो रास्ता रोक कर बैठ जाते हैं। और फिर आपने इस आयत को पढ़ा, यानी ला ताक़ुदू बिकुल्ली सिरातिन तुअदून, यानी हर रास्ते पर लोगों को खौफजदा करने और राह खुदा से रोकने को ना बैठा करो। यानी एक तो ये है कि होता है ना कि लोग अगर कोई नेकी और खैर का काम करना चाहते हैं तो फौरन हम क्या करते हैं, उनको डराने लगते हैं कि ना मत करो, ऐसे मत करो, वहां मत जाओ, वो न मत पढ़ो, वो सीखो मत, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं। तो यानी हम नेकी के कामों से लोगों को मुख्तलिफ हीलों और बहानों के जरिए, मुख्तलिफ बातों के जरिए जो रोकने की कोशिश करते हैं, इसका ये भी एक मतलब है। फिर दूसरा ये है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग रास्तों में यानी खजाकी किया करते थे, यानी छुप कर बैठ जाते थे और जो भी काफिले वहां से गुजरते उनको लूट लिया करते थे। यानी समटाइम्स लूट लेते और समटाइम्स उनको डराया करते थे कि वो रास्तों से वो लोग वहां से ना गुजरे और फिर उन्हीं का उन रास्तों पे कब्जा रहे। तो यहाँ पर इनके दोनों भी मतलब है। एक ज़ाहिरी तौर पर यह है कि रास्तों में बैठकर लोगों को डराया ना करो, उनको उन रास्तों से गुजरने से रोका ना करो, उन पर हमला करके उनके माल को लूट लिया ना करो। और फिर दूसरा ये भी मतलब है कि लोगों को नेक कामों से रोकने की जो हम कोशिश करते हैं वो भी क्या है, इसका ये भी एक मतलब निकलता है, इसका ये भी एक मफहूम होता है कि कोई नेकी का काम करना चाहता है तो हम ये कहते हैं ना कि अरे यानी आप इतने साल से नहीं कर रहे थे, अब अचानक से आपको नेकी का शौक आ गया है और आप नेक बनना चाह रहे हैं। कोई हिजाब नहीं करते थे और किसी ने हिजाब शुरू कर दिया तो हम उनको मजाक करने लगते हैं कि अब तुम ये उम्र में हिजाब करोगी, या फिर तुमको अचानक हिजाब करने का शौक क्यों पैदा हो गया, तुम तो इसकी सख्त मुखालिफत थी और फिर क्यों कर रही हो, या आजकल के माहौल में ऐसा हिजाब करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से करके तुम अपने आप को परेशानी में डालोगी, लोग तुम्हारी मुखालिफत करेंगे, तुमको अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे, यहाँ का माहौल ऐसे नहीं है। इस तरह की बातें करना। फिर कोई अगर दीन सीखने के लिए निकला है तो उसको मुख्तलिफ बातों के जरिए से कि वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसे हैं, ये यानी इस तरह की बातें करके लोगों को जो रोकने की कोशिश की जाती है नेकी और खैर और भलाई के कामों से, इससे भी इसका यहाँ पर वही जिक्र है कि उनका अंजाम भी इसी तरीके से होगा। अल्लाह ताला हमको ऐसे काम करने से महफूज रखे।
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہیں، یعنی بہت زیادہ کوئی چیز جمع کیے ہوئے ہیں جسے اٹھا نہیں سکتا، یعنی اتنا بڑا اس نے ایک جمع کر لیا ہے کہ اب اس کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اٹھا نہیں سک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس میں اور چیزیں شامل کر رہا ہے، یعنی وہ ڈھیر کو، وہ جو وزن ہے اس کو اور بڑھانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شخص آلریڈی اس کا جو ڈھیر ہے وہی نہیں اٹھا پا رہا ہے، پھر اور اس میں وہ جمع کر رہا ہے اور اس ڈھیر کو بڑھا رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق یعنی رائٹس اس قدر ہیں کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا، تاہم وہ اور حقوق بڑھا رہا ہے اور امانتیں لے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کوئی شخص اس کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں، اگر ان ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے یعنی کر پا رہا ہے تو اور ذمہ داری لینی چاہیے اور بوجھ اپنے اوپر ڈالنا چاہیے، لیکن اگر انسان کے پاس آلریڈی ذمہ داری ہے، چھوٹی سی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کو بھی وہ اچھے طریقے سے پورا نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اور ذمہ داریاں اپنے اوپر لاد رہا ہے، تو ایک چھوٹی ذمہ داری کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حل من مزید یعنی حرص میں پڑا ہوا ہے، لالچ میں پڑا ہوا ہے اور زیادہ ذمہ داریاں لے رہا ہے۔ تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم اتنی ہی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، اتنی ہی ذمہ داریاں ہم کام کی اپنے اوپر بوجھ ڈالیں جن کا ہم حق اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور ہم جب حق اچھے طریقے سے جو ذمہ داریاں پہلے سے ہم پر ہیں ان کا ادا کر رہے ہیں تب ہمیں نیکسٹ ذمہ داری لینی چاہیے۔ اگر ہم نیکسٹ ذمہ داری لے رہے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جو یہاں پر مثال بیان کی گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا، یعنی چند لوگوں کے ایک گروپ کو آپ نے دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹیں لوہے کی کھینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، یعنی ان کی جو زبانیں اور ہونٹ ہے وہ لوہے کی کھینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کٹے پھر ادھر درست ہو گئے، پھر کٹے پھر یہی حال برابر جاری ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ فتنے کے باعث اور خطیب ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہیں ان کی ہونٹ جو ہے لوہے کی کھینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی زبانیں اور ان کی ہونٹ بھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ فتنے کے باعث اور خطیب ہیں۔ فتنے کے باعث اور خطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا جو لوگ کام کرتے ہیں، واعظ اور تقریر اور نصیحت کی جو محفلیں یعنی جماتے ہیں لوگ، اور پھر یعنی مسجدوں میں جو خطبے دیے جاتے ہیں ان کو خطیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اوریٹرز ہیں، اسپیکرز ہیں، اور یہ اپنی اسپیچز کے ذریعے سے اور اپنے تقاریر کے ذریعے سے یہ لوگ کیا ہے فتنوں میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر عیب لگا دیتے ہیں۔ تو ایسی یہ واعظین اور ایسے خطیب جو ہیں جس کے ذریعے اپنی تقاریر کے ذریعے سے اپنے خطبوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے، لوگوں کو آپس میں جوڑنے اور لوگوں کو حقوق ادا کرنے کی ترغیب دینے کے بجائے ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کے درمیان یعنی وہ تقریر سننے کے بعد انسان نیکی اور خیر کا کام نہیں بلکہ نیکی اور خیر بھلائی سمجھ کر ہی کوئی بڑا غلط کام کر دیتا ہے۔ تو ایسے واعظین اور خطیبین کو آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا، یعنی انسان کیا ہوتا ہے جب واعظ اور تقریر کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس کو جب اس کی ایک لذت لگ جاتی ہے، یعنی اس کی ایک عادت ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں اور ان کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ یعنی بغیر ریسرچ کیے بھی یعنی اپنے نفس کے مطابق، اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی سوچ کے مطابق جو من میں آیا جس طرح سے اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو جوڑنے کے بجائے، لوگوں کو دلوں کو نرم کرنے کے بجائے فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں، اختلاف کا باعث بن جاتے ہیں اور امت میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ تو پھر ان کا آخرت میں جو انجام ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں اور ان کی ہونٹوں کو خینچیوں سے لوگوں سے کاٹ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے، یعنی ایک پتھر ہے، بڑا سا چٹان ہے، اس میں سے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے ایک بڑا بیل نکل رہا ہے، بہت بڑا بیل نکل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹے سے سوراخ میں پھر وہ نکل تو گیا ہے، لیکن اب دوبارہ اس میں وہ داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ چھوٹے سے سوراخ سے وہ اندر داخل نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر نہیں جا رہا ہے اور جا بھی نہیں سکتا۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, ये क्या है? फरमाया, ये वो शख्स है जो कोई बड़ा बोल बोल देता है। यानी हम जज्बात में आकर, गुस्से में आकर, या बोलते हैं ना नफरत में आके, हाँ क्या है, अपनी जबान से हम कोई बात निकाल देते हैं और वो बात बहुत बड़ी होती है और किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा देती है। तो आप देखेंगे यानी मुंह से एक बार कोई बड़ी बात निकाल दी गई, अब उसके बाद सामने वाले को तकलीफ हो गई, उसकी वजह से रिश्तों में खराबी आ गई, उसकी वजह से मियाँ बीवी में किसी में यानी डिफरेंस पैदा हो गया, तलाक हो गई, या फिर घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लोगों में झगड़े पैदा हो गए, यानी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब हम बैठ के रियलाइज कर रहे हैं कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, हमारा मकसद ये नहीं था कि इतनी बड़ा फसाद मच जाए, लेकिन अब ये हो चुका है और नुकसान जो होना था वो हो चुका है, अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो इससे सीखने वाली बात ये है कि इंसान जब बातचीत करे तो बहुत ही सोच समझ कर बातचीत करे, और जज्बात में आकर और गुस्से में आकर और किसी की नफरत में हम कुछ भी बात बोल देंगे और फिर उसका जब असर देखेंगे कि उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो हम ये कहेंगे कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था और हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। तो आप देखेंगे अब वो जो नुकसान है वो तो वापस होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा कोशिश करना कि जब भी बातचीत करें सोच समझ कर बोले और हमेशा बड़े बोल से अपने आप को बचाएं। अक्सर इंसान क्या है, नादानी में और गुस्से में, नफरत में और हसद में क्या है, बहुत बड़े बड़े बोल बोल देता है, लेकिन जब उसके गले पड़ जाती है वही बात, तो फिर आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन वो बात पलट नहीं सकती। तो सोचने वाली बात यह है कि बात बहुत सोच समझ कर बोलनी चाहिए और बड़े बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े बोल बोलने से अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजारा एक वादी में हुआ। वहां पहुंचे तो निहायत ही खुशगवार ठंडी हवा और दिल खुशकुन खुशबू और राहत और सुकून की मुबारक सदाएं सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये यानी इतनी अच्छी जगह कौन सी है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जन्नत की आवाज है और ये जन्नत कह रही है कि अल्लाह मुझसे अपना वादा पूरा कर, मेरे बाला खाने, रेशम, मोती, मूंगे, सोना, चांदी, जाम, कटोरे, शहद, पानी, दूध, शराब वगैरह वगैरह नेमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। इसे खुदा की तरफ से जवाब मिला, अल्लाह की तरफ से जवाब मिला कि हर एक मुसलमान मोमिन मर्द औरत जो मुझे और मेरे रसूलों को मानता हो, नेक अमल करता हो, ना मेरे साथ किसी को शरीक करता है, ना मेरे बराबर किसी को समझता है, वो सब तुझ में दाखिल होंगे। सुन, जिसके दिल में मेरा डर है वो हर खौफ से महफूज है, जो मुझसे सवाल करता है वो महरूम नहीं रहता, जो मुझे खर्ज देता है मैं इसे बदल देता हूँ, जो मुझ पर तवक्कुल करता है मैं इसे किफ़ायत करता हूँ। मैं सच्चा माबूद हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे वादे खिलाफ नहीं होते, मोमिन नजात याफ्ता हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला बाबरकत है और जो सबसे बेहतरीन खालिक है। ये सुनकर जन्नत ने कहा, बस मैं खुश हो गई। फिर आप एक ऐसी दूसरी वादी में पहुंचे जहां निहायत बुरी और भयानक मकरू आवाजें आ रही थी और सख्त बदबू थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाबत सवाल किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि ये जहन्नुम की आवाज है। वो कह रही है कि खुदाया मुझसे अपना वादा पूरा कर और मुझे वो दे, मेरे तौख, वो जंजीर, मेरे शोले और मेरी गर्म हवा, मेरा थोहर, मेरा लहू और पीप। मेरे अजाब और सजा के सामान बहुत वाफर हो गए हैं, मेरा गहराव बहुत ज्यादा है, मेरी आग बहुत तेज है, मुझे वो दे दे जिसका वादा मुझसे हुआ है। अल्लाह ताला फरमाएगा, हर मुशरिक व काफिर, खबीस, मुनकिर, बेईमान मर्द औरत तेरे लिए हैं। ये सुनकर जहन्नुम ने अपनी रजामंदी जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चले यहाँ तक कि बैतुल मक़दस पहुंचकर यानी गुम्बद जो सगरा है वहाँ अपने घोड़े को आपने बांधा और फिर आपने जाकर फरिश्तों के साथ यानी नमाज अदा की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें किस तरीके से यानी आपको दौरान सफ़र में मुख्तलिफ वाक़यात आपको दिखाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से यानी जो लोग जहन्नुमी होंगे और जो जन्नती होंगे उनका क्या अंजाम होगा। फिर वहाँ पर यानी जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से यानी आप निकले
تو پھر یعنی وہاں پہنچنے سے پہلے اور بھی 2-3 واقعات آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے یعنی رکھنا چاہوں گی کہ کچھ اور یعنی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک خوان لگا ہوا ہے، یعنی ایک دستر لگا ہوا ہے، یعنی جس پر نہایت نفیس گوشت بھنا ہوا ہے، اور دوسری جانب بھی خوان لگا ہوا ہے، تو اس میں بہت ہی سڑن اور بھوس والا گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے سلسلے میں بھی جب آپ نے سوال کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی رغبت کرتے تھے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹ کی طرح ہیں اور ان کے یعنی جو منہ ہے پھاڑ پھاڑ کر فرشتے انہیں ان کے گوشت کے لقمے دے رہے ہیں، جو ان کے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جایا کرتے تھے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھائیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم کچھ دور چلے، دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل ادھر ادھر لٹکی ہوئی ہیں اور ہائے ہائے واویلا کر رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا کہ یہ آپ کی امت کی زناکار عورتیں ہیں۔ پھر دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدایا قیامت قائم نہ ہو۔ پھر اونی جانوروں سے وہ روندے جاتے ہیں اور خدا کے سامنے وہ آہذاری کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود خور ان لوگوں کی طرح یعنی سود خور لوگ ہیں اور یہ سود کھایا کرتے تھے، اور وہ اس طریقے سے کھڑے ہیں جیسے شیطان نے انہیں باولا بنا رکھا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ دور چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں، اور وہ کہتے جاتے ہیں جس طرح اپنے بھائی کا گوشت اپنی زندگی میں کھاتا رہا اب بھی کھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا کہ آپ کی امت کے عیبجو اور آواز کش لوگ ہیں، یعنی چند لوگوں کو گوشت کھلایا جا رہا تھا اور ان سے فرشتے یہ کہہ رہے تھے جس طریقے سے تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے اسی طریقے سے اب یہاں پر بھی تم گوشت کھاؤ۔ تو پھر آپ نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے عیب نکالا کرتے تھے اور لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ تو یعنی دنیا میں غیبت کرنے کا، سود کھانے کا، زنا کرنے کا، یتیموں کے مال کھانے کا، آپ دیکھیں گے بلا سوچے سمجھے بڑے بڑے الفاظ بولنے کا، بعض کے ذریعے تقریر کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا انجام ہمیں یہاں پر بتایا گیا۔ یعنی یہ وہ اعمال ہیں جس کو اگر ہم اس دنیا میں کریں گے تو آخرت میں اس طریقے کے پنشمنٹ سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا کی زندگی میں ایسے اعلیٰ اعمال کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور یہ اعمال ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں تو آج اس کو سننے کے بعد ہمارے اندر یہ شوق اور تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ آج کے بعد میں یہ اعمال ایسے نہیں کروں گی۔ کوشش ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے، اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے توبہ کریں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہماری نیت اچھی ہے، ہم یہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن نفسانی غلبے کی وجہ سے اگر ہم سے کچھ ہو رہا ہے تو فوراً ریئلائز کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، تو آپ دیکھیں ہم اس سزا سے بچ جائیں گے۔ لیکن ان کاموں کو معمولی گناہ اگر ہم سمجھیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں کرتے رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آخرت میں کیا ہے یہ وہ انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ چند واقعات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور ایک واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خاص طور پر، کہ کس طریقے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران میں آپ نے دیکھا کہ فرعون کی ایک جو مشاطہ تھی، مشاطہ کے معنی ہوتے ہیں ہیئر ڈریسر، کہ اس نے کس طریقے سے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یعنی جنت میں اس کا جو مقام ہوا ہے اور اس کا جو مرتبہ ہوا ہے وہ چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم معراج کی طرف آگے بڑھیں گے۔
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सही मुस्लिम की रिवायत है और भी बहुत सारी अहादीस से ये वाक़या साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मिराज एक मुकाम से मुझे निहायत ही आला और मस्त खुशबू की महक आने लगी। मैंने पूछा यह खुशबू कैसी है? जवाब मिला कि फिरऔन की लड़की की मुशाता और इसकी औलाद के महल की है। यानी फिरऔन की शहजादी को कंघी करते हुए जो हेयर ड्रेसर थी, इसके हाथ से इत्तेफाकन कंघी गिर पड़ी तो इसकी जबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने इससे कहा, अल्लाह तो मेरा बाप ही है। इसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो है जो मुझे और तुझे और खुद फिरऔन को रोजियां देता है। उसने कहा, अच्छा तो क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? इसने जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है। उसने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त उसे बरसरे दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा और किसी को अपना रब मानती है? इसने कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गियों वाला है। फिरऔन ने इस वक्त हुक्म दिया कि तांबे की यानी एक बहुत बड़ी यानी देगची लाई जाए और इसे खूब उसमें तेल डाला जाए और इसको खूब तपाया जाए, यानी घी डाला जाए जो गाय से बनी हुई है। और जब वो बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए और आखिर में खुद इसे भी इसमें इसी तरह डाल दिया जाए। चुनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डालना शुरू कर दो। इसने कहा, बादशाह, एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर, वो ये कि मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। इसने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हुकूक हमारे ज़ुम्मे हैं, इसीलिए ये मंजूर है। जब और सब बच्चे इसमें डाल दिए गए और सब जलकर राख हो गए तो सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की यानी सीने से लगा हुआ दूध पी रहा था। फिरऔन के सिपाहियों ने इसे जब घसीटा तो इस नेक बंदी के आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को इसी वक्त जबान दे दी और इसने आवाज बुलंद कहा, अम्मा जान, अफसोस न करो, अम्मा जान, जरा भी पसोपेश न करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे इन्हें इस औरत को सब्र आ गया और इसे भी इसमें डाल दिया गया और आखिर में इन बच्चों की माँ को भी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन डाल दिया गया। ये खुशबू की महकें इसी के जन्नती महल से आ रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के साथ ये भी बयान फरमाया कि 4 छोटे बच्चों ने गहवारे में यानी झूले में ही बातचीत की थी। एक तो यही बच्चा और एक वो बच्चा है जिसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की शहादत दी थी और एक वो बच्चा जिसने हज़रत जरीर वलील्लाह की पाक दामनी की शहादत दी थी और आखिर में हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जिन्होंने गहवारे में बातचीत की थी। तो हमें तारीख में 4 रिवायतें मिलती हैं, यानी 4 बच्चों की वाक़यात हमें मिलती हैं कि जिन्होंने बचपन में ही जब वो छोटे बच्चे थे उसी वक्त यानी 2-3 महीने के बच्चे थे या 4-5 महीने के, तो उसी वक्त उन्होंने बातचीत की थी। नॉर्मली बच्चे आप देखेंगे यानी 1 साल के करीब यानी बात करना थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने माँ के जब वो गोद में थे, इन्फेंट ही थे, उसी वक्त उन्होंने बात की थी और ये तफसील हमें इसकी यहाँ पर मिलती है। तो इस तरह के यानी वाक़यात हमें मिलते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत वाक़यात हैं, लेकिन ये वाक़यात हमें जो मिलते हैं ये सही अहादीस से मिले हैं जो मैंने आपके सामने इनको शेयर किया। अब इसके बाद आप देखेंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और फिर वहाँ पे आपने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद रिवायत में आता है कि आपकी आसमान यानी मिराज उरूज के माने सीढ़ी के होते हैं, तो एक सीढ़ी थी जो आसमान की तरफ तक जाती थी, उसके ज़रिए से यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ चढ़े, तो इसी को भी मिराज यानी कहा जाता है। फिर दूसरी रिवायत में आता है कि एक दरख्त था और उस दरख्त पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो ये दरख्त फूलने लगा और ये आसमानों की तरफ उठा और आप वहाँ पर पहुँच गए।
تو اس طرح کے ہمیں یعنی آسمان کا جو سفر آپ کا شروع ہوا تھا وہ ہم نے اس کو یعنی دیکھا کہ کس طریقے سے آپ آسمان کی طرف گئے. ایک تو یہ ہے کہ یعنی معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ آسمان کی طرف گئے. دوسرا یہ ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ تھا, اس پر آپ لوگ بیٹھ گئے اور وہ اوپر کی طرف آگے بڑھنے لگا, اور اس طریقے سے آپ پہلے آسمان کی طرف وہاں پر پہنچ گئے. تو جب آپ پہلے آسمان کی طرف وہاں پر پہنچے, یعنی جس طریقے سے آپ دیکھیں گے بنی آدم کی روحیں چڑھتی ہیں. دنیا نے ایسی چیزیں کبھی نہیں دیکھی کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والوں کی آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں. یہ اسی سیڑھی کو دیکھتے ہیں, یعنی ایک روایت ہے یہ کہ تعجب کے ساتھ ہم دونوں اوپر چڑھ گئے. تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسماعیل نامی فرشتے سے ملاقات کی. اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے, آسمان کا سفر شروع ہو گیا. اور اس کی ہمیں روایت جو ملتی ہے وہ احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ جب آپ یعنی پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر اسماعیل نامی فرشتے سے ملاقات کی, جو آسمان دنیا کا سردار ہے, جس کے ہاتھ تلے جو ہیں 70,000 فرشتے ہیں, جن میں سے ہر ایک فرشتے کے ساتھ اس کی لشکری فرشتوں کی تعداد 1 لاکھ ہے. یعنی جیسا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے, کہا جبرائیل علیہ السلام. پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہیں, بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں. وہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا, یعنی اس حیت میں, اس شکل میں دیکھا جس میں وہ اس دن تھے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا. ان کی اصلی صورت پر ان کے سامنے ان کی اولاد کی روحیں, اللہ عالم یہ صحیح ہے یا غلط, روحیں پیش کی جاتی ہیں. نیک لوگوں کی روحوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں پاک روح ہے اور پاک جسم بھی ہے, اسے علیین میں لے جاؤ. اور بدکاروں کی روحوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں خبیث روح ہے, جسم بھی خبیث ہے, اسے سجین میں لے جاؤ. تو یہ اس طریقے سے یعنی آپ کے سلسلے میں آدم علیہ السلام کی ہمیں روایت ملتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دوسرے آسمان پر چڑھے, تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے آپ سے یعنی پوچھا گیا, وہاں کے دوسرے آسمان کے فرشتے نے پہلے آپ لوگوں نے سلام کیا, جبرائیل علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ کون ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کون ہیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ کو مرحبا کہا گیا, اہلاً و سہلاً کہا گیا, اور پھر آپ کے لیے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں گے یعنی اللہ کے نظام کائنات میں کتنا ڈسپلن ہے اور کتنا ادب ہے اور کتنا ایک سسٹم ہے, یہ ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے کہ آپ آئے ہیں یعنی ایک سسٹم کے تحت, ایک پروسیجر کے تحت ہی آپ کا یعنی استقبال کیا جا رہا ہے, آپ سے معلومات لی جا رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد آسمان کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے. تو دوسرے آسمان پر جب آپ چڑھے تو وہاں آپ نے ایک نہایت ہی حسین شخص کو دیکھا. اور یہاں پر آپ دیکھیں گے بعض اسکالرز یعنی بعض احادیث میں یہ 7 آسمان کے سلسلے میں خاص طور پر بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر ہی آپ کا یعنی ملاقات جو ہے یوسف علیہ السلام سے بھی, اور بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں احادیث میں تھوڑا سا اس سلسلے میں ہمیں اختلاف ملتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ابن کثیر کی جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے دوسرے آسمان پر ایک حسین شخص کو دیکھا, اور جو حسین لوگوں میں وہی اہمیت رکھتا ہے جو فضیلت چاند کو اور ستاروں پر ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں. میں نے انہیں سلام کیا, جس کا جواب انہوں نے دیا. پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان کی طرف چڑھے, تو پھر اس کو اسی طریقے سے جو پہلے آسمان اور دوسرے آسمان پہ سوال اور جواب ہوا, اسی طریقے سے سوال اور جواب ہوا. اس کے بعد وہ آسمان کا دروازہ کھلا, اور وہاں پر آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ آدمی بھی تھے. میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے مجھے جواب دیا. پھر میں چوتھے آسمان کی طرف چڑھا, وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو پایا.
जिन्हें अल्लाह ताला ने बुलंद मकान पर उठा लिया। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर 5वें आसमान की तरफ चढ़ा। वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, जिनकी आधी दाढ़ी सफ़ेद थी और आधी सियाह और बहुत लंबी दाढ़ी थी, करीब करीब नाफ तक। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उन्होंने बतलाया कि ये अपनी कौम के हर दिल अजीज हजरत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम हैं। इनके साथ इनकी कौम की जमात है। उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं छठे आसमान की तरफ चढ़ा। वहां हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप गंदुम वो रंग थे, बाल बहुत थे और 2 कुर्ते भी पहन लेते तो बाल उनसे गुजर जाते। आप फरमाने लगे, लोग ये ख्याल करते हैं कि मैं अल्लाह ताला के पास इनके बड़े मर्तबे का हूँ, हालांकि ये मुझसे बड़े मर्तबे के हैं। तो आप देखिए, यानी आपने फरमाया कि लोग समझते हैं कि मैं आपसे बड़े मर्तबे का हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है। तो आप देखिए, जब आपने सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को खबर में नमाज पढ़ते हुए देखा था, फिर अब आपकी यहाँ पर यानी दूसरी मुलाकात आपकी जो हुई थी वो बैतुल मक़दस में हुई थी, और फिर अब आपकी यहाँ पर तीसरी मुलाकात आसमान पर हो रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक हदीस हमें मिलती है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो उस वक्त आप देखेंगे सारे लोग यानी मर जाएंगे, और फिर जब अपने अपने खबरों से उठाकर खड़े किए जाएंगे, और फिर उसके बाद जब एक तमाम लोग मैदान में जमा होंगे, यानी जब तमाम लोग अपने खबरों से उठकर खड़े होंगे और तमाम लोग मैदान में जमा होंगे, और फिर उसके बाद यानी सारे लोग यानी अल्लाह से हिसाब व किताब के लिए फरमाइश करेंगे, और सारे लोग जो हैं यानी बेचैन होते रहेंगे कि कब हिसाब व किताब शुरू होगा। तो उसके सिलसिले में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं खबर से उठूंगा, और मैं जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श को थामे हुए हैं। तो आप कहते हैं कि वो पहले उठे या मैं उठे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, मैंने उनको अर्श को थामे हुए देखा था। तो इससे पता चलता है कि आपने ये बता के बयान किया कि मुझे लगता है कि उनका मर्तबा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। फिर आपने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त करने पर मुझे मालूम हुआ कि आप हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम हैं। आपके पास भी आपके कौम के लोग थे, आपने भी मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं 7वें आसमान की तरफ बढ़ा। वहां मैंने अपने वालिद हजरत इब्राहिम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम को अपनी यानी पीठ जो है बैतुल मामूर से टिकाए हुए बैठे हुए देखा। आप बहुत ही बेहतर आदमी हैं। दरियाफ्त तो मुझे आपका नाम भी मालूम हुआ। मैंने सलाम किया, आपने जवाब दिया। मैंने अपनी उम्मत को निस्फ देखा, यानी निस्फ यानी आधी के तो सफ़ेद जैसे कपड़े थे और आधे के सख्त सियाह कपड़े थे। मैं बैतुल मामूर में गया, मेरे साथ ही सफ़ेद कपड़े वाले सब गए, और दूसरे जिनके खाकी कपड़े थे वो सब रोक दिए गए, वो भी खैर पर। फिर हम सब ने वहां नमाज अदा की और वहां से बाहर आए। इस बैतुल मामूर में हर दिन 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जो एक दिन पढ़ गए इनकी बारी क़यामत तक नहीं आती। फिर मैं सिदरतुल मुंतहा यानी एक ऐसा दरख्त जिस अब ये आखिरी यानी इंतहा से है कि जानिब बुलंद किया गया, जिसका हर हर पत्ता इतना बड़ा था कि मेरी सारी उम्मत को ढांक ले। इसमें से एक नहर जारी थी जिसका नाम सलसबील है। फिर इसमें से 2 चश्मे फूटे हैं, एक नहर कौसर है और दूसरा नहर रहमत है। मैंने उसमें गुस्ल किया, मेरे अगले पिछले सब गुनाह माफ हो गए। फिर मैं जन्नत की तरफ चढ़ाया गया, वहां मैंने एक हूर देखी। तो आप देखिए, ये भी थोड़ी सी रिवायत में हमें यानी इख्तलाफ मिलता है। तो फिर उसके बाद आप वहां से आगे बढ़े, और फिर ये हमें हदीस मिलती है कि वहां पर आपने देखा कि दूध की और बेनशा लजीज शराब और साफ सुथरे शहद की आपने नहरें देखी। इसके बड़े बड़े डोल के बराबर थे, इसके परिंदे यानी बड़े बड़े ऊंटों जैसे थे। बेशक अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की जो किसी आंख ने न देखी, किसी कान ने न सुनी, न किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। फिर मेरे सामने जहन्नुम पेश की गई, जहाँ गज़ब खुदा की नाराजगी खुदा थी। इसमें अगर पत्थर और लोहा डाला जाए तो वो इसे भी खा जाए। फिर मेरे सामने वो बंद कर दी गई। फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा दिया गया और मुझे ढांप लिया। बस मेरे और उसके दरमियान सिर्फ बखतर 2 कमान के फासला रह गया।
बल्कि और करीब और सिदरतुल मुंतहा के हर एक पत्ते पर फरिश्ता आ गया और मुझ पर 50 नमाजें फर्ज की गई। यहाँ पर आपकी अल्लाह ताला से बातचीत हुई और फरमाया कि तेरे लिए हर नेकी के अवध 10 है। तू जब किसी नेकी का इरादा करेगा बजा भी न लाए ताहम नेकी लिखी जाएगी, और जब नेकी कर ले तो 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और बुराई का महज इरादा करने पर बगैर यानी अगर आपने बुराई का इरादा किया लेकिन बुराई नहीं की तो कुछ भी ना लिखा जाएगा, और अगर बुराई कर ली तो सिर्फ एक ही बुराई शुमार की जाएगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आने यानी वापस आप जब वापस जाने लगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफे दिए गए वो एक तो ये था कि आप पर आपकी उम्मत पर 50 नमाज फर्ज हुई, 50 नमाजें फर्ज की गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास आसमानों पर बुलाकर अल्लाह ताला ने ये नमाज का तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। यानी नमाज जो फर्ज हुई है वो आसमानों पर हुई और ये तोहफा आसमानों पर दिया गया। इतना बाबरकत और इतना मुक़द्दस और इतना अहम ये तोहफा था और आपकी उम्मत के लिए दिया गया। फिर दूसरा ये कि आपको ये बताया गया कि अगर कोई शख्स एक नेकी करेगा तो उसका अजर 10 नेकियों के बराबर होगा, यानी 10 नेकियां उसको लिखी जाएंगी, और अगर कोई शख्स एक बुराई करे तो सिर्फ एक ही बुराई लिखी जाएगी। अगर कोई शख्स बुराई का इरादा करे तो उसको लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स नेकी का इरादा कर ले तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको यानी नेकी लिखेगा और उस पर उसको अजर अता फरमाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर जो तोहफे दिए गए, एक तो क्या थी 50 नमाजें फर्ज की गई, यानी दूसरा फिर आपको सूरह बकरा की जो आखिरी यानी 2 आयतें थी वो आपको दी गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि जो कोई शख्स यानी शिर्क ना करेगा तो अल्लाह ताला उसके यानी तमाम गुनाहों को माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये 3 तोहफे उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा को आपके ज़रिए से दिए गए। तो यहाँ पर आप देखिए 50 नमाजों के सिलसिले में ख़ास तौर पर हमें एक तवील हदीस मिलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब 50 नमाजें आपकी उम्मत पर फ़र्ज की तो आप उनको लेकर वापस हो रहे थे तो आपका गुजर मूसा अलैहिस्सलाम के पास हुआ। तो जब आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा कि आपको यानी क्या तोहफा दिया गया, तो आपने बताया कि मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की गई हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको मशवरा दिया कि मुझे बनी इसराइल का बड़ा अच्छा तजुर्बा है कि वो लोग इनको बहुत हल्के हल्के अहकामात दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद उसकी वो पाबंदी नहीं कर सके। तो आप वापस जाइए और उम्मीद आपकी उम्मत ये 50 नमाजें ये हुक्म पूरा नहीं कर पाएगी, आप इसको कुछ कम करवा दीजिए। तो इस तरीके से फिर आप वापस जाते हैं और फिर 5 नमाजें कम होती हैं। इस तरीके से आप बार बार जाते हैं, 5 नमाजें मूसा अलैहिस्सलाम आपको मशवरा देते हैं और आप 5 नमाजें कम करवाते हैं। फाइनली जब सिर्फ 5 नमाजें बाकी रह गई थी तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे फिर कहा कि जाइए इसको भी कम करवा दीजिए, मुझे तजुर्बा है कि बनी इसराइल ने इसको पूरा नहीं किया था, आपकी उम्मत भी इसको कर नहीं पाएगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब शर्म आ रही है। तो फिर आपको आवाज आई कि जो कोई शख्स इन 5 नमाजों को वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ेगा तो उसको 50 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब वापस हुए तो उस वापसी का जो सफ़र है उस दौरान में आप देखेंगे कि यानी आप जब वापस आए तो उस रास्ते में भी आपको चंद वाक़यात पेश आए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि जब आपने इन तमाम चीज़ों का यानी जिक्र किया और आप जब वापस हो रहे थे तो उस वक्त आपका यानी एक काफिले से सामना हुआ और उस वक्त वो काफिला जो है किसी जगह पे पड़ाव डाला हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की वजह से वो जो काफिला है, काफिले का जो एक ऊँट था वो आपसे यानी बुराक से शायद टकरा गया और वो लंगड़ा हो गया था। ये एक वाक़या पेश आया। फिर दूसरी जगह पे आप जब यानी गुजर रहे थे तो एक प्याला रखा हुआ था पानी का, यानी ऊँटों के सामने वो प्याला जो है वो टकराने की वजह से वो लुढ़क गया था और आपकी आवाज़ को बाद लोगों ने, काफिले के लोगों ने पहचान लिया था और उन्होंने कहा ये की आवाज़ तो मोहम्मद की आवाज़ है। तो इस तरह के 2-3 वाक़यात आपके साथ
पेश आए और आप जब वापस रात में आ गए तो सुबह के वक्त आपने नमाज पढ़ी मस्जिद हराम में, और आपने इस वाक़े को यानी फ़िक्रमंदी के अंदाज में आप बैठे रहे। और फिर उसके बाद अबू जहल ने आपको देखा तो उसने आपको पूछा कि क्या बात है, तुम फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हो। तो एक रिवायत में आता है कि आप उम्मे हानी के घर में थे और आपने जैसे ही उठे और आपने फजर की नमाज के बाद उम्मे हानी के सामने रात का जो आपका सफ़र था उसकी तफसीलात आपने बयान की, तो उम्मे हानी परेशान हो गई और वो आपसे कहने लगी कि आप इस वाक़े को लोगों के सामने बयान ना करें, क्योंकि लोग ऑलरेडी आपको यानी मजनून और दीवाना करार दे रहे हैं। और जब आप ये बात बयान करेंगे कि एक ही रात में या रात के कुछ हिस्से में या कुछ मिनटों में आप जाकर यानी बैतुल मक़दस भी जाकर आए हैं और आसमानों का भी सफ़र करके आए हैं, तो लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और आपको जो ऑलरेडी मजनून कहा जा रहा है वो बात की तस्दीक हो जाएगी। और वो कहीं कि ऑलरेडी मसाइल इतने ज़्यादा हैं, ऑलरेडी आपकी इतनी मुखालिफत हो रही है, तो ये और ज़्यादा आपकी मुखालिफत में इजाफे का ज़रिया बनेगा। लेकिन आपने कहा कि मैं हक बात है और अल्लाह की बात है, मैं इसको ज़रूर लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो इससे आप देखेंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पहुँचे बाहर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में आप बैठे हुए थे तो अबू जहल आपके करीब आया और आपसे पूछने लगा, तो आपने कहा कि मैं रात में बैतुल मक़दस जाकर आया हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे निशानियाँ दिखाई हैं। तो वो कहने लगा कि अच्छा, तुम ये बात सबके सामने कहोगे? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल। फिर उसने पूरे लोगों को जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़यात की तफसील को बयान किया। तो बहुत सारे जो मुनकरीन मक्का थे वो और ज़्यादा यानी आपका मजाक उड़ाने लगे और आपका इनकार करने लगे। फिर अबू जहल ने जाकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि देखो तुम्हारा जो साथी है वो इस तरह से बयान कर रहा है कि वो रात के हिस्से में यानी उस ज़माने में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा यानी मक्के से बैतुल मक़दस का जो सफ़र था वो 1 महीने का जाने और 1 महीने का आने का सफ़र था। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि एक रात में आप जाकर आ गए। बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये चंद मिनटों का भी सफ़र था, बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि रात के कुछ हिस्से का सफ़र था और बाज़ कहते हैं कि एक रात का सफ़र था, यानी पूरी रात में आपके साथ ये मामलात पेश आए। तो एक रिवायत जो हमें मिलती है कि आप जब अपने बिस्तर से उठे थे और जब आप वापस आए तो उस वक्त आपका यानी जो बिस्तर था वो गर्म था। तो इतनी ही देर में आपने पूरा यानी सफ़र करके सारे मामलात देख कर वापस आए। फिर बात ये भी हमें मिलती है कि जो दरवाजे की यानी कुंडी थी उसके सिलसिले में भी यानी रिवायत सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो जो कुंडी आपने ऐसा हिल रही थी वो रुकी नहीं थी, उतनी देर में आप वापस आ गए थे। तो ये देखिए हमारे लिए कोई यकीन यानी उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की तो उन्हें बड़ी हैरत हुई और मुशरिकीन मक्का के लिए ये वाक़या ये मौजज़ा एक आजमाइश का ज़रिया बन गया और उनके और बोलते ना कुफ्र में इजाफे का ज़रिया बना और जो मोमिनीन थे उनके ईमान में और ज़्यादा इजाफे का बास बना। जब अबू जहल ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि तुम्हारा साथी इस तरह की बात बयान कर रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बातें बयान की हैं। उसने कहा तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो कुछ भी कहा है अल्लाह के नबी ने बयान किया है तो फिर आपने सच ही कहा है। हम तो इससे और गैर मामूली बात पर यकीन रखते हैं कि आपके ऊपर अल्लाह के यानी आसमानों से वही आती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आपके ऊपर वही आती है। तो इस वजह से आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया, यानी आपने सच की तस्दीक़ की थी, इस वजह से आपको सिद्दीक़ का लक़ब दिया गया और आपका सिद्दीक़ का यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आपका लक़ब मशहूर हुआ है। तो इसके बाद बास मुशरिकीन मक्का ने आपसे सवाल किया कि अगर आप बैतुल मक़दस जाकर आए तो फिर हमें उस इमारत की जो पिलर्स है उस बारीक बारीक बातें उन लोगों ने जो लोग वहाँ जाकर आए थे उसके ताल्लुक से सवालात किए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा को आपके सामने ज़ाहिर कर दिया और आप पूरे जो सवालात वो लोग कर रहे थे आपने उनके जवाबात उनको दे दिए। फिर उसके बाद उन लोगों ने आपसे ये भी सवाल किया कि इस दौरान सफ़र में तुम्हारे साथ कोई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, हम ज़रूर इन चीज़ों की तस्दीक़ करेंगे। तो रिवायत में आता है कि वो जो 2 काफ़िले जो वापसी के सफ़र में यानी वाक़यात हुआ था कि एक ऊँट जो है वो लंगड़ा हो गया था और दूसरा जो है जो उनका पानी के जो थे
प्याले वगैरह जो थे वो जो हैं वो ख़त्म हो गए थे या लुढ़क गए थे। वो सारे ये जो वाक़यात पेश आए थे, वो लोग जब वापस आए मक्के की तरफ, तो उन काफ़िले वालों ने शहर मक्का के जो मुशरिकीन थे उनको ये बयान किया कि हमारे सफ़र के दौरान कुछ ऐसा गैर मामूली वाक़यात पेश आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उनको बता दिया था कि मैं जब वापस हो रहे थे तो आपने वो ऊँट वाले दोनों वाक़यात उनको बताए थे, और जब वो काफ़िले वाले वापस आए और उन्होंने ऐसे ही बयान किया कि हमारे साथ कुछ अजीब वाक़यात हुए हैं, तो इससे भी आपकी उन काफ़िले वालों के ज़रिए भी आपके इस वाक़े की तस्दीक हुई। फिर बाद रिवायत में ये भी एक रिवायत आती है कि जिस रात यानी बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा के अंदर आप दाखिल हुए थे, तो उसका जो दरबान है, मस्जिद अक़सा का जो गेट कीपर है, वो हर रात जब अपने घर वापस होता था तो वो उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो उस गेट को लॉक करे। और वो कहता है कि उस रात भी मैं जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पेश आई थी, उस रात भी उसने उस गेट को लॉक किया था। वो कहता है कि जब मैं सुबह के वक्त में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो गेट खुला हुआ है। तो ऐसे कई वाक़यात हैं जिसके ज़रिए से यानी ये बात की तस्दीक हुई प्रैक्टिकली भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज भी थी और आप मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए थे और आपने इमामत करवाई थी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखेंगे ये मेराज का जो वाक़या है, जो वाक़यात मैंने आज आप लोगों के सामने रखे हैं इस कदर तफसील के साथ, तो इनका मकसद ये है कि इन वाक़यात के ज़रिए से हम नसीहत हासिल करें। आपको इस सफ़र में पास्ट भी दिखाया गया। पास्ट यानी माजी जो है, माजी में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल आए हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाई गई, आपको उनसे मिलवाया गया, यानी आपको पास्ट में भी ले जाया गया और फिर आपको प्रेजेंट में भी आपको दिखाया गया और फिर आपको फ्यूचर भी बताया गया। तो पास्ट अंबिया अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात और इमामत है। फिर आप देखेंगे फ्यूचर जो है, फ्यूचर में आपको जो जन्नत और दोज़ख है जिसमें लोग किन आमाल की वजह से दाखिल किए जाएंगे, वो भी आपको दिखाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों यानी जो ज़माना है, जो पीरियड है, तीनों पीरियड में आपको ले जाया गया और तीनों पीरियड में जो चीज़ें हुई आपको दिखाई गई। और अल्लाह ताला ने खुद सुने यानी बनी इसराइल में फरमा दिया कि हमारा मकसद ये था कि लिनुरियहु आयाती, कि हम आपको अपनी अपनी ज़बरदस्त निशानियां दिखाएं, और ये निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। और ये एक मौजज़ा था, और ये मौजज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है अल्लाह ताला ने, और इसके ज़रिए से मोमिनों के ईमान में और इजाफ़ा हुआ और मजबूती हुई, और जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, जो गैर यकीनी की कैफियत से दो चार थे, वो और ज़्यादा गैर यकीनी की कैफियत में चले गए और ज़्यादा शुकूक व शुबात का शिकार हो गए और ज़्यादा वो अपनी गुमराही में बढ़ते चले गए। तो अल्लाह का मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली दी जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाए, मोमिनीन को तसल्ली दी जाए, और मोमिनीन को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जो निशानियां हैं वो दिखाई जाएं और उनको बताई जाए कि ये जिन चीज़ों की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, जिस चीज़ की दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, वो हक़ है, वो सही है, और ये चीज़ होने वाली है, और इसमें रत्ती बराबर भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यानी वाक़या मिराज और इसरा हमारे लिए की बहुत ही नसीहत आमेज़ और बहुत ही सबक आमेज़ वाक़या है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रहा। और इसके बाद आप देखेंगे जब मुसलमानों के ऊपर, उम्मत मुस्लिमों पर नमाज फ़र्ज़ हुई है, तो ये वाक़ये के सिलसिले में आता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मक्के का आखिरी दौर था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अगला सफ़र था वो आपकी हिजरत है। तो मक्की दौर के आखिरी दौर में ये वाक़या पेश आया है, और इसमें आपको सारी चीज़ें बता दी गई। और इस वाक़ये के बाद आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी 14 महीने या 12 महीने या 16 महीने के बाद आपने हिजरत की, और फिर इसके बाद आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने दुनियावी लिहाज से भी बेहिसाब नेमतों से आपको नवाजा।
हुक्मरानी और गलबे से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वाक़े से जो सीखने वाली बात ये है कि ये वाक़या कोई कहानी या किस्सा नहीं है, ये एक वाक़या हकीकत में हुआ है, ये मोजज़ा है, ये मिराकिल है। और इन तमाम चीज़ों को दिखाने का मकसद और उम्मत मुस्लिमा को आपके ज़रिए से ये पैगाम पहुँचाने का मकसद ये है कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, हम सबक लें, वो आमाल ना करें जिनकी वजह से हमें दुनिया में और आखिरत में नाकामी होगी। अब यहाँ पर एक सवाल बहन ने किया है कि शुड बी सेलिब्रेट मिराज। सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ सेलिब्रेशन के लिए, मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि सेलिब्रेशन का मतलब मनाना, उसका मतलब क्या होता है कि खुशी मनाना। तो हमारे यहाँ दो ही त्यौहार हैं, दो ही ईदें हैं जिनको मनाने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ये दो सेलिब्रेशंस हैं जो हमें मनाने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा किसी सेलिब्रेशन का हमें कोई हुक्म नहीं दिया गया। तो ये वाक़या हुआ था और इसकी हमें सही अहादीस हमें मिलती हैं और कई अहादीस इस सिलसिले में हमें मिलती हैं अहादीस की किताबों में, और इस वाक़े की तस्दीक भी उस ज़माने में हो गई थी। तो आप देखेंगे इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन आपका यानी जो नबूवत का पीरियड है वो 23 साल का है, 13 साल मक्की और 10 साल मदनी दौर है। तो इसके बाद तकरीबन आप देखेंगे यानी 10-11 साल, आप जैसा होता है ना कि एक साल के बाद अगर 12 महीने के बाद आपने हिजरत की है तो 10 साल मदीने के और मक्के के एक साल आप लगा ले, तो 11 या 12 साल के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को हर साल याद किया और उस रात आपने कोई ख़ास नमाज का एहतमाम किया या उस रात आप जागे या फिर उसके दूसरे दिन आपने रोज़ा रखने का हुक्म दिया, ऐसी कोई दलील हमें नहीं मिलती। ये वाक़या अहम है और इसके ज़रिए से, इन वाक़यात के ज़रिए से हमें नसीहत लेने का हुक्म दिया गया है, सबक लेने का हुक्म दिया गया है और अपने अमल को सही करने का हुक्म दिया गया है। इस वाक़े को लेकर मनाने का हमें कहीं भी हुक्म नहीं मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाक़या नसीहत के लिए बयान किया गया। इसको सेलिब्रेट करने या मनाने या जागने या इबादत करने या रोज़ा रखने का हमें कहीं भी दलील नहीं मिलती। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हमें एक भी हदीस नहीं मिलती कि इसके बाद आपने हर साल उस दिन आपने बयान किया हो कि मैं इस तारीख को गया था, इस तारीख को मैं रात में जागूंगा, इबादत करूंगा, दूसरे दिन में फिर उठ के रोज़ा रखूंगा, मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा गया, नमाज दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। तो आपने इतना बड़ा तोहफा मिला और अब मुझे ये करना चाहिए, इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ऐसी कोई हमें दलील नहीं मिलती। आप हर रोज़ तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, हर रोज़ आप रात में उठते जागते और इबादत किया करते थे, आपका रोज़ का मामूल था। आप हर पीर और जुमेरात को आप रोज़ा रखा करते थे, अय्याम 20 के आप रोज़ा रखा करते थे, यानी 13, 14 और 15 हर महीने के। लेकिन इसके सिलसिले में हमें कोई हदीस या कोई दलील कुरान हदीस से ऑथेंटिक जो है वो नहीं मिलती है। तो इससे मैं पता चलता है कि इसको मनाना, यानी हम कुछ समझ सकते हैं कि इसको मनाना चाहिए या नहीं। फिर दूसरी चीज़ आप देखेंगे सहाबा, यानी आपके जो साथी थे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, ये तमाम लोग आपके बाद मौजूद थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस वाक़े को, हज़रत आयशा ने से भी मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बयान किया था। हज़रत अनस से, बहुत सारे सहाबा से मेराज की हदीस हमें मिलती है, सही अहादीस हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए से, मुख्तलिफ यानी वाक़यात के ज़रिए अहादीस बहुत सारी आई हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं मिला कि उसके बाद उस रात का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया। और शुरू में ही मैंने बता दिया था कि इस वाक़ये की तारीख़ के सिलसिले में आप देखेंगे हमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ मिलते हैं, और ख़ास तौर पर मेजर 5 जो इख्तिलाफ़ थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। तो बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी हम पढ़े हैं, सुने हैं, अल्लाह हम सब के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस वाक़े के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आए, हम वक्त पर नमाज की पाबंदी करें, ख़ास तौर पर फजर की नमाज की और इशा की नमाज की पाबंदी करें, और सोने की वजह से हम जो नमाज़ों को ज़ाय करते हैं उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सूद खाना, ज़िना, ये सारे बड़े बड़े जो गुनाह हैं, गुनाह कबीरा हैं, ज़कात ना देना, ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना और इस्लाह करने की ज़रूरत है।
تو میں آج اپنی بات کو یہاں پر روکتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.